Good morning, students and my dear parents. Once again, I heartily welcome you all to my YouTube education channel, The Guru Upanishad. Okay, due to some circumstances, I was not among you, but now I am back here to help you guys, and we will be studying regularly from now on basis. Okay, students, this video section is especially dedicated for class 8 students of SPS school and all other school who follow this book, a new leaf book series. Okay, a new leaf book series. And as we had already studied the chapter number 4, a dark silent house. Okay, chapter number 4, a dark silent house. Okay, so today we will discuss about the exercise and related questions of this chapter. Okay, let me remind you about the story. The story is about the narrator who happened to enter a strange house when he got struck into the rain and storm late night. And in that strange house, he got some meal and a bed to sleep. But later he discovered that the house was broken in by the burglars, robbers. Okay, and those robbers were planning to kill him. Somehow he escaped from there and again came back. He returned with police and got them arrested. Okay, this is the gist of the story. ठीक है बच्चों, हमने इस कहानी में पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखक की गाड़ी खराब हो जाती है और देर रात को वो बारिश में फंस जाता है। तो किसी प्रकार से एक अनजान से घर में वो शरण लेता है जहाँ उसे खाना मिल जाता है अपने आप। मीन्स वहाँ घर में कोई नहीं होता है, खाना लगा हुआ होता है, वो उसको लेके खा लेता है, बेड पे आराम करता है। बाद में उसे पता चलता है कि घर में कुछ चोर हैं, 2 चोर हैं जो उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वहाँ से किसी तरह चुपके से भाग जाता है और फिर सुबह वापस आता है पुलिस को लेके और उन चोरों को अरेस्ट करवाता है। सो ओपन पेज नंबर 38 ऑफ योर बुक एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक इज, व्हाट वाज द अनकंफर्टेबल फीलिंग that the narrator experienced on entering the house? नरेटर ने क्या असहज महसूस किया जब वो घर में प्रवेश कर रहा था? घर में घुसने के बाद उसे क्या असहज महसूस हुआ, क्या अजीब फीलिंग हुई? ओके, सो स्टूडेंट्स, कहानी को यदि आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, यू मस्ट बी remembering that narrator was just surprised, okay, to see that dining table was decorated with meal, but there was nobody. The food was warm, but there was nobody in the house. He knocked many times. At last he entered when no reply came, and he found that house was open. Dining table was decorated with meal, but there was nobody. ये बातें उसे अजीब सी लगी। ठीक है, सो क्या लिखेंगे आप आंसर में? Narrator found it strange that the house was open, dining table had warm food, but nobody was there. Okay, मैं आपके लिए एक बार फिर रिपीट करता हूँ। Narrator found it strange that the house was open, dining table had warm food, but nobody was there. या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं,
The narrator found it strange that the house was open, the dining table was decorated with warm food, but nobody was there. इसके अलावा थोड़ी उसको और भी असहज स्थिति महसूस हुई थी। उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, उसे फॉलो कर रहा है, या कभी कभी उसे भूतहा एक्सपीरियंस भी हुआ, भूत प्रेत वाली। तो ये बात भी आप इस आंसर में ऐड करेंगे। Sometimes he thought some invisible faces were following him. He also had some phantom experience. Okay? Answers अभी आपके स्क्रीन पे ब्लिंक करेगा, आप उसको देख के लिख सकते हैं। इससे बेहतर है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप क्या लिखना है आंसर में इसे समझिए और फिर अपना आंसर लिखिए। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। Why did narrator decide to get away from the house? नरेटर ने घर से चले जाने का निर्णय क्यों लिया? बिल्कुल चले जाना चाहिए था, क्योंकि जो दोनों रॉबर्ट्स हैं वो उसको मारने की सोच रहे थे, जान से मारने की बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत खतरा था। ओके, सो क्या लिखेंगे आंसर में? द नरेटर डिसाइडेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस, or the narrator decided to get away of the house because he got to know that his life was in threat. He heard two ambiguous persons discussing to kill him and he left the house alone for better. ठीक है, उसे इसलिए उसने तय किया घर को छोड़ना क्योंकि उसकी जीवन जो है खतरे में थी। उसने दो संदिग्ध व्यक्तियों को बात करते हुए सुना था जो उसके जान से मारने के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए वो मौका देखकर अपने अच्छे के लिए घर छोड़कर भागा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द पुलिस डिस्कवर व्हेन दे अराइव्ड विद द नरेटर? पुलिस को क्या पता चला जब वो नरेटर के साथ वापस आए? स्टोरी में क्या बताया गया है कि वो दोनों रॉबर्ट्स थे, उनका अपना मकान नहीं था, उसमें वो लोग मौका देख के, क्योंकि उसके मकान के मालिक बाहर गए हुए थे छुट्टियों पे, तो उन्होंने इस मकान में घुस गए थे। साथ ही साथ उन लोगों ने लॉरीज से, ट्रक से बहुत सारी सिगरेट, विस्की, फर, इन सब आदि को लूट कर जमा कर रखा था और उसकी स्मगलिंग करना चाहते थे। ठीक है, सो आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? द पुलिस डिस्कवर्ड दैट द टू मेन वेयर रॉबर्ट्स एंड स्मगलर्स। आई रिपीट, द पुलिस डिस्कवर्ड दैट द टू मेन वेयर रॉबर्ट्स एंड स्मगलर्स। Recently they had collected cigarettes, whiskey, furs and out of their loot from lorries, okay, and hoarded into that house illegally while the owner of that house were out for holidays. Okay, again मैं बता देता हूँ, यदि आप नहीं सुन पाए तो अभी आंसर जो है आपके स्क्रीन पे ब्लिंक करेगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वाज इट वाइज ऑन द पार्ट ऑफ नरेटर टू सीक शेल्टर इन अ स्ट्रेंज एंड अननोन हाउस? क्या नरेटर के लिए ये बुद्धिमानी थी कि एक अजीब अनजान घर में वो शरण ले रहा था रात को? नहीं, ऐसा करना तो किसी के लिए भी बुद्धिमानी नहीं होती है। ओके, तो सिंपली आप क्या लिखेंगे? नो, इट वॉज एब्सोल्युटली अनवाइजफुल। इट वॉज एब्सोल्युटली अनवाइजफुल फॉर द नरेटर टू टेक शेल्टर, फॉर द नरेटर टू टेक शेल्टर इन अ स्ट्रेंज एंड अननोन हाउस। ओके, दिस माइट हैड कॉस्ट हिम हिज लाइफ हैडंट ही लेफ्ट द हाउस इन टाइम। ओके, मतलब कि यदि समय पर वो नहीं भागा होता, घर नहीं छोड़ा होता, तो उसे जान से भी हाथ गंवाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ई। शुड द नरेटर हैव ईटन द फूड लेड आउट एंड स्लेप्ट ऑन द बेड? नहीं, क्या नरेटर को
जो खाना पहले से लगाया हुआ था, परोसा हुआ था, उसे खाना चाहिए था और उस बेड पे सोना चाहिए था। नहीं, एक तरीके से देखे तो ये भी बुद्धिमानी नहीं है। खाने में जहर हो सकता था, या खाना किसी जानवर द्वारा पॉइजन किया गया हो सकता था, कुछ भी। ओके, सो आंसर में क्या लिखेंगे? नो, द नैरेटर शुड नॉट हैव ईटन द फूड लेट as it might be poisoned. Okay, and it was risky for the narrator to sleep on the bed. He could have attacked fiercely with an intention of killing by the robbers. उतना निश्चिंत होकर वो अनजान से खुले घर में सो गया, तो ये भी खतरे की घड़ी थी कि नींद में रहता नरेटर और उस पर कोई आक्रमण कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फ्रॉम whom डू यू थिंक was the meal laid? आपको क्या लगता है कि भोजन किसके लिए लगाया गया था? कहानी पढ़कर ये पूरा क्लियर होता है स्टूडेंट्स, दैट मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द रॉबर्स देमसेल्व्स। मील जो है, भोजन जो है, वो रॉबर्ट्स द्वारा ही खुद के लिए लगाया गया था, क्योंकि मकान मालिक तो थे नहीं घर में, बाहर गए थे छुट्टियों पे। इसलिए रॉबर उस घर में आए, उन्होंने अपना नाश्ता बनाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुनी, नैरेटर की नॉक करने की आवाज़ सुनी, वो लोग भोजन छोड़ के हड़बड़ी में उठ गए और छुप गए, जिसके कारण टेबल भी एक गिरा पड़ा था। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके आंसर में क्या लिखेंगे आप? The meal was laid by the robbers, okay, for themselves only. The meal was laid by the robbers for themselves only. They must have left the dining table and hidden in hurry and fright of being caught when they heard the knock on the door. Okay. Next question, students. What do you think George and Fred should have done when they saw the narrator asleep? आपको क्या लगता है कि जॉर्ज और फ्रेड को क्या करना चाहिए जब उन्होंने नैरेटर को सोते हुए देखा? सो इट इज सिंपल स्टूडेंट्स, दे वर ऑलरेडी रॉबर्स एंड दे इंटेंडेड टू किल द नैरेटर। वो लोग चोर थे, लुटेरे थे, और उन्हें अपनी सच्चाई छुपाने के लिए पहले से वो लोग तैयार थे कि नैरेटर को मार देना है। तो उनके पास वही रास्ता था कि समय ना खत्म होने से पहले या तो वो नैरेटर को अटैक करके मार दें, या फिर जब इस डर से कि उनकी सच्चाई ना पकड़ी जाए वो वहां से चुपचाप भाग जाए, निकल जाए, या फिर नैरेटर के सुबह अपने आप चले जाने का इंतजार उन्हें करना चाहिए था। सो आंसर में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? जॉर्ज एंड फ्रेड वेर ऑलरेडी इंटेंडेड टू किल द नैरेटर, ओके, टू कीप देयर सीक्रेट एंड बी अनआइडेंटिफाइड। ओके, दे शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम in the discussion, or they should have opted to flee from the place. भाग जाना चाहिए था। अच्छा, लास्ट रास्ता क्या था? They could also have waited for the narrator to leave. Okay, नैरेटर के भी चले जाने का इंतजार उन्हें कर लेना चाहिए था बिना कुछ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर H. Do you think narrator was brave and clever और was he foolish? Why? आपको क्या लगता है कि नैरेटर जो है वो बहादुर था, चालाक था, या एक बेवकूफ़ इंसान था? क्यों, आपको क्या लगता है और क्यों? सो नो डाउट नैरेटर जो है वो एक बहादुर इंसान था, साथ ही साथ समझदार था, चालाक था, ठीक है, क्लेवर था, क्योंकि उसने समय पे परिस्थिति को भापा और उसने वहां से निकल जाना बेहतर समझा, लेकिन सिर्फ अपनी उसने जान नहीं बचाई, निकल जाने के साथ साथ वो वापस भी आया पुलिस को लेकर और उन रॉबर्ट्स को उसने पकड़वाया। सो वो क्लेवर तो था ही, ब्रेव भी है।
Okay, so students, the narrator was quite a brave person. Instead of running away for his life only, he escaped. He carefully observed the circumstances and returned with police. Okay, he did both. He saved his own life and also got the robbers arrested. Okay, students, question number I. Imagine a situation when on entering the house, the narrator found the two thieves having dinner. What do you think would have happened? Okay, एक सिचुएशन का हमें कल्पना करना है कि जब नरेटर घर में एंटर किया तो वो जो थीव्स थे वो एकदम दोनों का आमना सामना हो जाता, नरेटर का और थीव्स का। तब क्या होता? स्टूडेंट्स, जो थीव्स थे वो बहुत खतरनाक इरादे के थे, लुटेरे थे, उनमें कोई मर्सी नहीं थी। सो मुझे लगता है कि फर्स्ट साइट में ही उन लोगों ने नरेटर पे अटैक किया होता और फिर नरेटर के लिए मुश्किल होता उसकी जान को बचाना या वहां से भाग पाना। आंसर में क्या लिखेंगे? हैड द नरेटर मेट द थीव्स ऑन एंटरिंग द हाउस, ही वुड हैव टू मेट अ टफ सिचुएशन। उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। ओके, द थीव्स would have attacked upon him and it would have been critical for the narrator to escape for his life. Okay, students, question number J. Suppose you were the narrator, how would you have ended the story? यदि आप narrator होते तो आपने स्टोरी को कैसे एंड किया होता? Student, this is a thinking and then writing question, and this is a type of question which is open question which required open thinking. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो खुले दिमाग का है, से आंसर करने का है, जिसमें हमारे सबके अपने अलग अलग राय हो सकते हैं और राइटिंग स्किल्स के लिए क्वेश्चन बहुत नेसेसरी है. So that's why I would request you all the students to please write this question by yourselves. अब ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, suppose you were the narrator, how would have ended the story? तो ये बच्चे आप अपने आप करें, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. MCQ क्वेश्चन. द स्टोरी कैन बी क्लासिफाइड. स्टोरीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स. हेरोइक स्टोरी, ड्रामेटिक स्टोरी, ओके, घोस्ट रिलेटेड मीन्स मिस्टेरिकल स्टोरी, हिस्टोरिकल स्टोरी, बहुत सारी स्टोरीज के टाइप होते हैं. तो ये क्या है, इसमें मिस्ट्री स्टोरी कहेंगे कि डिटेक्टिव कहेंगे कि हेरोइक कहेंगे? ओके, इसमें से क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ये यदि स्टोरी को आप ठीक से देखेंगे तो डिटेक्टिव तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई जासूसी इत्यादि नहीं की गई है, इसमें किसी जासूस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है. साथ ही साथ थोड़ा मिस्टेरिकल लगता है और फिर हेरोइक एंडिंग जो इसका है वो हेरोइक स्टोरी है, ठीक है. बट हेरोइक स्टोरी में स्टूडेंट्स फाइट होता है, ठीक है. सो इसीलिए इस स्टोरी को हम मिस्ट्री स्टोरी डिसाइड करेंगे. गॉट इट? द नरेटर एंटर्ड द एम्प्टी हाउस बिकॉज एंटर्ड द एम्प्टी हाउस. नरेटर उस खाली घर में क्यों घुसा? बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्केप द रेन. क्योंकि वो बारिश से बचना चाहता था. ओके. देयर वॉज फूड ऑन द टेबल. अपरेंटली वहां पे टेबल पे भोजन लगाया हुआ था. तो इससे क्या स्पष्ट होता है? अपरेंटली मतलब कुछ साफ होना, स्पष्टता. क्या स्पष्ट होता है? Someone was called away immediately.
भोजन को देखकर उस समय तत्काल पता लगा कि कोई भोजन करने बैठा था और तुरंत उसे कहीं बाहर जाना पड़ गया किसी काम से. If we let him go, he might go to the police. Who spoke this word? It is very clear. किसने ऐसे वर्ड बोला? नरेटर, फ्रेड या जॉर्ज? बोला तो रॉबर्ट्स ने था, बट आपको पर्टिकुलरली वो नाम बताना है बच्चों कि किसने बोला. और ये बोला फ्रेड ने. स्टूडेंट्स, कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40. यहाँ कुछ और रिलेटेड एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज में फॉर्मल लेटर है, कैसे लिखना है उसका फॉर्मेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे. गॉट इट. साथ ही साथ एक क्वेश्चन दिया हुआ है. द नरेटर रिसीव्स अ लेटर complimenting him for being alert and helping the police find out wanted criminals from the police commissioner. Write the letter. मतलब आपको पुलिस कमिश्नर बन के लेटर लिखना है नरेटर को. किस लिए? कि नरेटर एक जिम्मेदार नागरिक था, एक हेल्पफुल पर्सन था, साथ ही साथ वो अलर्ट था. तो उसके लिए उसकी प्रशंसा करनी है कि उसके अलर्टनेस की वजह से चोरों को पकड़ा गया. ओके स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो सेशन ऑन लेटर. आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और राइटिंग स्किल्स में आपको मिल जाएगा. फॉर्मेट को बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है उसमें. ठीक है. साथ ही साथ मेरे वेबसाइट जो है www.guruupnishad.wordpress.com, उस पर भी आप लोग राइटिंग स्किल्स के अंडर लेटर राइटिंग का फॉर्मेट और पूरा का पूरा लेटर बॉडी, कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कैसे लिखना है. तो इन सब की मदद, दोनों ही सोर्सेस की मदद लेके आप इस लेटर को कंप्लीट करेंगे. दिस इज योर होम असाइनमेंट. ओके ओके देयर आर सम मोर पार्ट्स दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. कुछ और पार्ट्स हैं जो हम अपने अगले वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे इस लेसन के. टिल देन I hope you understood how to write the question answer, and I hope that you and all your family, your relative, your friends are safe in this COVID-19 endemic. Okay, epidemic. So stay home, stay safe, and keep watching my YouTube channel. And please raise my followers, raise my subscribers, like if you like my effort. So don't ignore it. Just like my channel and share it as much as you can. Thank you.